the meeting. I, Bilal Imran, being the General Secretary of PNYLSN chapter, I would like to start off by saying that I hope you all are well, and it gives me great pleasure to warmly welcome each and every one of you in today's webinar on judicial law clerkship in Pakistan. This session has been organized by the Pakistan National Young Lawyers Association in collaboration with Pakistan National Lawyers Network. The PNYLA, also known as the Pakistan National Young Lawyers Association, is a platform dedicated to supporting young lawyers and law students across Pakistan. Our aim is to create opportunities where students and professionals can learn, grow, meet, and connect with experienced members of the legal community. Through webinars, training sessions, collaborative initiatives, we try to bridge the gap between academic knowledge and practical exposure. At the same time, PNYLA is a nationwide platform that welcomes individuals not only from the field of law but from all academic backgrounds. It is built on the idea of unity, professional development, collaboration within the organization. The Pakistan National Lawyers Network works to provide guidance, networking opportunities, and career oriented platforms for students and graduates across Pakistan. Today's meeting and the topic is particularly important for anyone interested in understanding the judicial system and exploring a career as a law clerk. In this webinar, we shall be covering four major points that would be an overview of the judicial law clerkship program in Pakistan, along with that, the procedure and role of a judicial law clerk, as well as eligibility criteria and the application process, and lastly, the practical guidance and career prospects of this entire degree. We are truly honored to have with us Ms. Tayyeba Munir. She is an extensive and experienced individual in quasi judicial offices, particularly with the Ombudsman institution, including the Federal Tax Ombudsman, a member of the OIC Ombudsman Association. Currently, she serves as judicial law clerk in Honorable Justice Ishtiyaq Ibrahim at the Supreme Court of Pakistan. Her experience and insights will provide invaluable guidance to all of us. We are especially and utterly grateful to Ms. Tayyeba Munir for taking such precious time out of her busy schedule to join us today and share her knowledge. Her support and willingness to guide young professionals like us are highly appreciated, and it truly reflects her dedication to the legal community. I am hereby confident that today's session will be informative, practical, and inspiring to everyone. Thank you all for being here, and let's get started. And with that, Ms. Tayyeba Munir, you shall have the platform. Thank you so much, Bilal, for the nice introduction. And I'm also very thankful to the president of Pakistan National Young Lawyers Association for inviting me. अच्छा, अब आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब आज ये जो वेबिनार है ये अटेंड कर रहे हैं एंड आई विल ट्राई कि इसमें कुछ आपके लिए फ्रूटफुल बात हो जो कि आप सीख सकें एंड इफ पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ यू तो कल किसी दिन आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कशिप का जो बहुत आई कंसिडर इट अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन तो आप में से भी कोई ये पोजीशन एंजॉय करे. Okay, so first of all, we should begin with कि clerkship का मतलब क्या है, what does this position means, ताकि आप लोगों को एक basic idea हो. I believe that most of the law students उनको ये अंदाजा तो होगा ही कि क्लर्कशिप क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ क्लर्क्स होते हैं उनका काम क्या होता है. बट अगेन अगर किसी को नहीं पता या जो नए हमारे लॉ स्टूडेंट्स आए हैं जो बिल्कुल जूनियर हैं अभी, तो उनके लिए लेट्स बिगिन विद कि लॉ क्लर्कशिप की पोजीशन होती क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ क्लर्कशिप है ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि अमेरिका से जो वहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी ओरिजिन अमेरिका में थी कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और उनकी बाकी कोर्ट्स भी हैं, वहाँ की जजेस को ज़रूरत होती थी अपने साथ लॉ स्टूडेंट्स रखने की या लॉ ग्रेजुएट्स रखने की जो उनको डेली बेसिस पे असिस्ट कर सकें अपनी डिफरेंट टास्क के अंदर, रिसर्च में, जजमेंट्स में, किसी भी चीज़ में. तो वहां से ये कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनेट हुआ फाइनली पाकिस्तान के अंदर आ गया, आई बिलीव अराउंड 10 years ago, और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर भी लॉ क्लर्क्स हमने रखना स्टार्ट किया. हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ क्लर्कशिप जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये होता है कि हर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हर जज है, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, हर एक जज के साथ हमारा एक लॉ क्लर्क होता है. यानी
वन जज वन लॉ क्लर्क. सो इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 जजेस होंगे कोर्ट के अंदर, तो हमारे पास 10 लॉ क्लर्क्स होंगे, ईच लॉ क्लर्क असिस्टिंग वन जज. अब लॉ क्लर्क से मुराद क्या है, लॉ क्लर्क का काम क्या है, तो हम उस पे आ जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ क्लर्कशिप से मुराद है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि हर एक जज को असिस्ट करने की. अब आपका काम क्या हो सकता है, तो मैंने क्योंकि आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार नहीं किए हैं, द डाटा इज पब्लिकली अवेलेबल. आप आराम से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके जो है ये तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. मैं आपकी आसानी के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखा देती हूँ, ताकि कल किसी ने भी सर्च करना होगा तो वो आसानी से सर्च कर पाए. ओके, सो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेज है, जिसके ऊपर आप जाएं और वहां पे क्लर्कशिप अगर सर्च कर लें तो आपको आराम से लॉ क्लर्कशिप के ऊपर जितनी भी चीजें वहां पर मौजूद हैं, जो पिछले बैचेस हैं वो, या जो पिछले लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम के क्वेश्चंस होंगे, उनकी एप्लीकेशन होंगी, उनकी गाइडलाइंस होंगी, वो तमाम चीजें आपको इस वेबसाइट पे मौजूद मिलेंगी. तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ सिंगल ओवरव्यू कि इस वेबसाइट पे क्या चीजें होंगी एंड किस चीज का क्या मतलब है, ताकि जब आप इसको नेविगेट करें तो आपको आसानी हो. सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे देखते हैं, तो हमारे पास चले हम सबसे पहले जो रीसेंट बैच है 2025 से 2026 का, हम उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या चीजें डिमांड की गई थी. सो दीज आर द, आई बिलीव कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो सही नजर आ रही होगी. कैन समवन कंफर्म? यस मैम. इस पे स्क्रीन आपको मूव होती भी नजर आ रही है? Yes, we can see the screen and we can see you scrolling it as well. ओके, परफेक्ट. अच्छा, अब सबसे पहले इस पेज पे हमें नजर आता है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट एंड द एसे क्वेश्चंस. तो ये आप स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन से, मतलब ये नीचे से ऊपर, मतलब नीचे सबसे पहली चीज है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी एंड दैट इज दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये तीन चार चीजें आ जाती हैं. जब हमारे पास सबसे पहले लॉ क्लर्कशिप की एडवर्टाइजमेंट होती है, इसके अंदर हर साल अगस्त टू सितंबर का जो टाइम होता है, उसमें हमारे पास लॉ क्लर्कशिप की एडवर्टाइजमेंट आती है, और उसके बाद ये तमाम चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती हैं. लॉ क्लर्कशिप की जो पोजीशन है, उसके काम सारा कुछ डिटेल हम उस पर बाद पे आते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए आप तमाम लोग कि जितने जजेस हैं हर एक के साथ, क्योंकि एक एक लॉ क्लर्क होता है, तो लॉ क्लर्कशिप की पोजीशंस आर नीड बेस्ड पोजीशंस. यानी कि जब एक वैकेंसी खाली होती है, देन ही उस वैकेंसी के लिए पोजीशंस ओपन होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक साल में 10 जजेस थे और 10 लॉ क्लर्क्स काम कर रहे थे, लेकिन अब अगले साल में 5 लॉ क्लर्क्स मौजूद हैं और 5 पोजीशंस खाली हुई हैं. तो इस साल जिसमें ये हुआ, उसमें हम सिर्फ 5 पोजीशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है. सो दिस इज अ प्योरली नीड बेस्ड पोजीशन. यानी जितनी पोजीशंस खाली होंगी, उतनी लॉ क्लर्क्स जो हैं वो आप लोग आपको इनटेक होगी उस साल में उतनी. तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ क्लर्कशिप का एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ही होता है, जिस तरह किसी भी चीज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है. यानी कि आपके नेम, आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, CNIC, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, वो सब कुछ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, एंड देन यू हैव टू अटैच अ CV विद इट. उसके अलावा इसमें होती हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसे क्वेश्चंस. आई बिलीव दैट द पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसे क्वेश्चंस जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी लॉ क्लर्कशिप की, जिसमें आपकी जिसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो रही है. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt in जी, between, but we cannot see your screen properly now. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, तो जो लॉ क्लर्कशिप के अंदर से मैंने आपको पहले बताया कि एक आपकी होंगी इसके अंदर एप्लीकेशन जनरली जो आप लोग करेंगे. इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर होते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं एंड पर्सनल स्टेटमेंट. आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा. Yes, now it's a bit more clear. Thank ओके, you. अच्छा, अब एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको बता दिया. डिटेल्स में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. एंड पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे क्वेश्चंस की बात हो रही थी कि व्हाट इज इन द पर्सनल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इन द ऐसे क्वेश्चंस. आई बिलीव कि आप तमाम लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द पर्सनल स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, यानी जो भी आपकी लाइफ है वो किस तरीके से रिवॉल्व करके आपको इस एक पोजीशन पे लेके आ रही है, दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या बात करनी है कि आपकी सिलेक्शन हो सके, या आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो, मतलब इट कैन कैच द आई ऑफ द कमेटी. पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ऐसी चीजें उसमें बतानी है जो कि आपकी लॉ जर्नी को, आपकी क्लर्कशिप की जो
इंटरेस्ट है उसके साथ कनेक्ट कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जब मैं लॉ ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो आई वुड बी द मोस्ट जूनियर पर्सन इन द लीगल हायरार्की, इन द लॉ प्रोफेशन की जो हायरार्की उसमें मैं सबसे जूनियर हूँगा, एंड जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं उसमें यानी कि जज साहिबान, मैं चाहता हूं कि या मैं चाहती हूं कि मैं उनसे सीखूं, डायरेक्टली उनकी गाइडेंस में सीखूं। सो दिस इज हाउ यू कैन शेप योर पर्सनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस तरह की उसमें बात लिखी थी, दैट बीइंग द मोस्ट जूनियर इन द लीगल हायरार्की, आई वुड लाइक कि मुझे सबसे जो सीनियर लोग हैं, जो सबसे ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो मुझे डायरेक्टली गाइड करें, मेरे डायरेक्टली टीचर बने, डायरेक्टली मुझे मेंटरशिप प्रोवाइड करें। तो दिस वाज माय पर्सनल स्टेटमेंट। आपका जो भी होगा इंटरेस्ट या जो भी आपकी पर्सनल जर्नी, आप इसमें वो बात बता सकते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स द एसे क्वेश्चंस, मैं अब आपको जो अपनी स्क्रीन है एसे क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास इट डिपेंड्स कि हर साल किस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। आई बिलीव आप लोगों को नजर आ रहे होंगे ये। ओके। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एप्लीकेशन खुली, इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चंस नहीं दिखा रही, आप अपने खुद से सर्च कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं कि क्या है एंड किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नजर आता है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस विद रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड बोथ पाकिस्तान एंड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस एप्लीकेशन के अंदर टोटल हमारे पास 7-8 क्वेश्चंस होते हैं ना, आपने उनमें से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं। ये हर साल चेंज भी हो सकता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब कभी आपको ज्यादा भी करने पड़ सकते हैं, कभी चॉइस कम भी हो सकती है। अगेन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ क्लर्कशिप कमेटी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसके आगे एक वर्ड काउंट भी लिखा है कि 750 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आई डोंट बिलीव कि आप इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से एस कर सकते हैं विद इन द 750 वर्ड काउंट। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने स्किल किस तरीके से ओवर द टाइम बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, कोई बंदा ऑप्ट करता है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आंसर करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? आपने हमेशा ये बात याद रखनी कि क्वेश्चन में जो बातें पूछी गई वो तो आपने बतानी ही है, बट यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड सीमलेसनेस इन द वे कि आप किस तरीके से अपने आंसर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हैप हैजर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एक कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में अपना आंसर तैयार करना है। तो सबसे पहले वो ये कहता है आपको कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे आंसर के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो स्ट्राइक डाउन करने की पावर थी भी या अभी जो भी सिचुएशन है वो क्या है, कौन से आर्टिकल्स एम्पावर करते हैं, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, ऑल दैट। और उसके बाद जो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स थे। ये जो एप्लीकेशन है ये 2025 में जब आंसर की गई होगी तो उसमें लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो है उसको टच किया होगा, बिकॉज हम सबको ये बात पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की थी। तो यकीनन जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो उसके अंदर हमेशा इंडिया की वो जो जजमेंट है वो भी साइड की जाएगी। तो अब आपने ये समझ लिया कि पहले हमने सारी बातें हमें लिखनी जरूरी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना जरूरी है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि उस क्वेश्चन में डिमांड है। लेकिन अगेन अब अगर हम ये सोचे कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप एक पेपर दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका टीचर एक लॉ स्टूडेंट के पेपर से क्या डिमांड करता है। सिमिलरली अगर एक वकील कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट कर रहा है और वो जज साहब को कोई आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो उस वक्त भी जज साहब उससे क्या डिमांड करते हैं। किसी भी लॉ स्टूडेंट का या लीगल प्रोफेशनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपनी हर बात को, हर चीज जो भी वो बात कर रहा है या वो बात कर रही हैं, उसको हमेशा एविडेंस के साथ सपोर्ट करें। नाउ हाउ यू गोइंग टू डू दैट? आपने हमेशा जो भी आंसर लिखना है उसमें जरूर जरूर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट केस लॉज हैं आपने वो जरूर उसमें डिस्कस करने हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जब भी आप ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वर्ड गूगल पे लिखेंगे, सबसे पहले केस आपके पास आएगा केसावनंदा भारती केस। इट इज एन इंडियन सुप्रीम कोर्ट केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता क्या है, एंड उसकी सिचुएशन उस मतलब उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने डिस्कशन की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या स्ट्रक डाउन की जा सकती हैं या नहीं, डिस्कसिंग दी ट्राइकोटोमी ऑफ द पावर्स, द सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड मतलब एक बहुत डिटेल्ड। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे जो रेलिवेंट जजमेंट्स हैं आपने वो जरूर इसमें साइट करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने
बम्बार्डमेंट नहीं कर देनी है जजमेंट्स की, मतलब ये भी साइटेशन उधर से भी इधर से भी, मतलब यू जस्ट हैव टू साइट द मोस्ट रेलिवेंट साइटेशंस जो उससे सबसे ज्यादा रेलिवेंट होनी चाहिए। ये आपको मैंने बिल्कुल एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया, इसको हम रिपीट करते हैं। जो क्वेश्चन में बातें पूछी गई हैं आप लोगों ने सबसे पहले इंश्योर करना है कि वो आपने बातें उसमें आंसर की हैं। देन जो भी बात आप कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, यू हैव टू back it with evidence. Now what should be the evidence? It can be the case laws most probably, यानी कि आपको जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स जो है वो जरूर साइड करने हैं, या वो कोई लॉ भी हो सकता है, कोई स्टैट्यूट की प्रोविजन हो सकती है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन हो सकती है, किसी और जो पीनल स्टैट्यूट्स हैं उनकी हो सकती है, मतलब इट डिपेंड्स अगेन कि आप किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें। बट अपना आर्ग्यूमेंट आपने अनसपोर्टेड नहीं छोड़ना, हमेशा उसको सपोर्ट करना है, बैक करना है किसी भी रेलिवेंट जो स्ट्रेंथनिंग प्रेसिडेंट होगा, कोई भी इस तरह की चीज जिससे आपका आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी इंश्योर हो। ये नहीं लगे कि आपने बस अपना एक ओपिनियन फ्रेम किया है, ओपिनियन किस बेसिस पे फ्रेम किया वो आपने नहीं बताया। अब हमने ये डिस्कस कर लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से अपनी इसको अच्छा कर पाएं कि आंसर हम लिख लें अच्छे से और वो रेलिवेंट भी हो, सारा कुछ अच्छे से जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राइटिंग स्किल जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अभी मोस्ट प्रोबेबली आप में से अक्सर बच्चे जो हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं मुझे, वो अभी अपने लॉ स्कूल्स में होंगे, अभी वो पढ़ाई कर रहे होंगे, सेमेस्टर्स में होंगे, या बिल्कुल जो अभी नए नए फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे। तो अब उनके लिए क्या तरीका है कि अगर कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो व्हाट शुड दे डू? उनको ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी राइटिंग स्किल पे काम करना स्टार्ट कर लें। कैसे वो होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो क्वेश्चन है सैम्पल हो गया ना अब आपके लिए, या इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस अब हमारे पास अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट की पास्ट क्लर्कशिप एप्लीकेशंस में, आप उनको ले लें, उनको डाउनलोड कर लें और एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम लें एंड देन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अपॉन इट। फॉर एग्जाम्पल, आप यही क्वेश्चन अगर ले लेते हैं तो उसको एक दफा कंप्लीटली लिख लें। अब इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आप 750 वर्ड्स का वर्ड काउंट जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आप बिल्कुल पॉलिश्ड वर्जन बना लें एंड 750 वर्ड्स में आप वो कर लें। इट इज अ बिट इम्पॉसिबल थिंग। तो सबसे पहले अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी राइटिंग स्किल की, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, इसको ले लें एंड इसको आप आंसर लिखें, जो भी आपका तरीका है आंसर लिखने का उस तरीके से आंसर लिखें। इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करें, सारा कुछ अपने एक पेज पे इकट्ठा कर लें एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। यानी सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की पाकिस्तान से, इंडिया से, रेलिवेंट जो भी जुरिस्डिक्शंस हैं, अमेरिका, कॉमनवेल्थ सिविल लॉ, सबसे आपने लेके लिख लेनी है अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है एंड देन उसके बाद अपना एक आंसर फ्रेम करना है। अब हो सकता है कि वो आंसर 1000 वर्ड्स का बन रहा हो। जब वो आंसर बन गया, अब आपने 1000 वर्ड्स को 750 पे लेके आना है, तो जस्ट कट डाउन द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको लगती है कि इसकी जरूरत नहीं थी और मैंने एक्स्ट्रा बात की है इसकी, वो आपने कट डाउन कर ली। देन अगेन री राइट द आंसर, दोबारा से आप आंसर लिखें कि अब मैं इसके अंदर अब मतलब आपको ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से अपनी चीजों को फ्रेम करना है। ये सबसे अच्छी टिप है अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी करने की, और ये आपको ना सिर्फ लॉ क्लर्कशिप की एप्लीकेशन के अंदर हेल्प लेगी, लेकिन जब आप अपनी लीगल प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिसिंग के लिए जाएंगे तो वहां पे जो प्लीडिंग्स हैं, आपकी ड्राफ्टिंग है, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगी। बिकॉज एज अ गुड लॉयर ये तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी ड्राफ्टेड पिटिशन होती है, जो हमारा जो लिख के हम कोर्ट में जमा करते हैं, दैट इज द थिंग जहां पे मोस्ट हम अपना आधा केस हार सकते हैं या अपना आधा केस जीत सकते हैं। बिकॉज वहीं से ही हमारा वीक पॉइंट शुरू हो जाएगा कि हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज मेंशन नहीं की या हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें से ओमिट कर ली है। तो राइटिंग स्किल आपके लिए वैसे भी बहुत जरूरी है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कि आप उसको अभी से एनहांस करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। एंड स्पेसिफिकली टू द क्लर्कशिप, मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि आप इन सैम्पल्स को लें एंड इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर लें। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने 2-3 ड्राफ्ट बना चुके होंगे तो आपका एक बहुत खूबसूरत और अच्छा आंसर जो है इसमें तैयार हो जाएगा। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस। अब हमने ये बात डिस्कस कर ली इसके अंदर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि जो फॉर एग्जांपल 2024 से 2025 का बैच था, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आए थे। मतलब यू कैन सी कि एंटायर एप्लीकेशन वाज, द एंटायर क्लर्कशिप एप्लीकेशन वाज हाईली फोकस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, जो मेरे आंसर्स थे, उसमें मुझे काफी सारे मुल्कों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ा था और एक बहुत अच्छा आंसर बनाने के लिए।
तो इट इज़ नॉट द केस कि हर टाइम एक ही लॉ की तरफ से चीज़ें आएँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एप्लीकेशन आपके सामने खोली गई है, इसमें आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। पहले 3 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट थे, बिकॉज़ ये उस टाइम पे हॉट इश्यूज़ थे। लेकिन हम जब जैसे-जैसे नीचे जाते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हल्का-हल्का डेविएशन हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो बात करते हैं, कानून शहादत की, फॉरेंसिक एविडेंस की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो अगेन अब यहाँ पे इसकी अच्छी बात क्या है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने जब प्रैक्टिस की होगी या वो इनहेरेंटली अच्छे होंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी एक टॉपिक के अंदर, किसी एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अच्छा होगा, उसका इंटरेस्ट उस तरफ होगा। किसी ने क्रिमिनल लॉ के साथ सीनियर के साथ प्रैक्टिस की होगी। तो अगेन अब ये बात नहीं होगी कि जिसने जिस एरिया में प्रैक्टिस की उसको उस एरिया की वजह से किसी किस्म का एडवांटेज मिले, बिकॉज़ द एप्लीकेशन वुड बी अ वेरी डाइवर्स वन। जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, देन अब कानून शहादत पे आ गए, देन सी द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एनआईआरसी, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। एंड मतलब डिफरेंट तरीके की चीज़ें आपसे यहाँ पूछी गई हैं। तो ये एक हमारे पास बहुत डाइवर्स किस्म की एप्लीकेशन होती है, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में अपना आंसर दे सकें और आपका जो भी बैकग्राउंड है प्रोफेशनल या जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा आता था, जो ज़्यादा पसंद था, उसकी वजह से आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हो, कोई किसी किस्म का आपको डिसएडवांटेज नहीं हो अपनी एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर। ये हमने एक सैंपल देख लिया। आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ से बिल्कुल पास्ट ईयर्स के भी जो पेपर्स हैं, आप वो वहाँ से ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमने डिस्कशन कर ली एक जो सुप्रीम कोर्ट की क्लर्कशिप के अंदर ऐसे क्वेश्चन से उसके बारे में। ना अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास? अगली चीज़ हमारे पास ये है कि हाउ मतलब क्लर्कशिप होती क्या है? अब हमने ये सीख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की क्लर्कशिप के अंदर किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है, क्या आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस किस्म से आपने अपनी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट डज़ द क्लर्कशिप एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम यू, यानी कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि आपने वो करना है या नहीं करना। तो अब उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम देखें क्लर्कशिप, what does clerkship actually means, what does the clerkship program demands from the candidates or the students। तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की जो क्लर्कशिप की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, लेकिन इसमें ये आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको इसमें अंदाजा होगा कि मतलब व्हाट डज द क्लर्कशिप प्रोग्राम एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम यू। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टूवर्ड्स के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एक लॉ क्लर्क की। यानी जब आप एक लॉ क्लर्क बन जाएंगे या आप एक लॉ क्लर्क बनना चाहते हैं, सो व्हाट शुड यू नो कि व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इट सेज दैट रिसर्च, एनालाइज, प्रिपेयर ब्रीफ्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ लीगल इश्यूज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक जज के साथ ड्यूटी लग गई एज अ लॉ क्लर्क, ना वो आपको ये काम दे सकते हैं कि रिसर्च करें, एनालिसिस करें, प्रिपेयर ब्रीफ्स करें, यानी जो भी डेली केसेस लग रहे हैं उनके बारे में केस ब्रीफ्स बना लें, या किसी भी लीगल इशू के ऊपर केस ब्रीफ बना लें और वो आप उनको सबमिट करें। ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकती है बेंच मेमोरेंडा, केसेस बीइंग हर्ड बाय द ऑनरेबल जज। अगेन वही वाली बात कि जो डेली बेसिस पे केसेस लग रहे हैं उनके लिए आप मेमोरेंडम बनाएं, यानी मेमोरेंडम से मुराद है कि एक छोटी सी केस ब्रीफ बना लें जिसमें आप फैक्ट्स बताएंगे, केस की हिस्ट्री एंड मतलब जो भी आउटकम्स उसके नीचे लोअर कोर्ट्स में रहे वो तमाम चीज़ें, और वो अपने जज साहब को सबमिट करेंगे ताकि उनके लिए आसानी हो समझने में कि इस केस फाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं। लाइक आपने एक एब्स्ट्रैक्ट समरी बनानी होगी। आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू गाइस वुड हैव बीन इंडल्ज्ड इन दी थीसिस इन दी रिसर्च। तो वहाँ पे हम जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं वो जो उसका मकसद है वो इसके अंदर आप करेंगे एक केस के लिए बेंच मेमोरेंडम बनाने के लिए। बेंच मेमोरेंडम से ये भी हो सकता है कि आपको जज साहब के अलावा जिस बेंच में आपके जज साहब बैठते हैं उस बेंच को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़े। हमारे एक लॉ क्लर्क हैं सुभान, आप लोगों ने शायद उनके बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने बेंच को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी एक इशू के ऊपर, एंड मतलब उस असिस्टेंस की वजह से जजमेंट के अंदर उनकी वो तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ऐड की गई थी एंड उन्होंने प्रॉपरली बेंच को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी कोर्ट के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप असिस्टेंस कर सकते हैं। प्रिपेयर ओपिनियंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इससे ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल हमेशा जो न्यू एंड फ्रेश ओपिनियन होता है उसकी एक बहुत वैल्यू होती है। ये हो सकता है कि हम बहुत सालों से एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा एक
ओपिनियन उस पर फॉर्मुलेट हो गया और अब उसकी वजह से हम नए सिनेरियो को देखने के काबिल नहीं हों, तो दैट माइट हेल्प द जजेस के जो उनके पास लॉ क्लर्क्स हैं वो एक फ्रेश ओपिनियन लेके आएं और एक नए अंदाज से अपना जो स्टूडेंट्स हैं, जो जजेस हैं, उनको वो लॉ क्लर्क एक नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से किसी लॉ के ऊपर असिस्टेंस प्रोवाइड करे। यानी आपको ओपिनियन फॉर्मुलेशन के लिए भी कहा जा सकता है। ओके इसके अलावा हमारे पास है असिस्ट विद द डे टू डे वर्कलोड ऑफ द चैम्बर बाय कैरिंग आउट ऑल द नेसेसरी टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये भी हो सकता है कि आपके जज साहब, आपका जो चैम्बर के अंदर एक वर्कलोड होता है, किसी भी किस्म का काम हो सकता है, लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो उसमें आपसे असिस्टेंस मांगे और आप उसमें उनको हेल्प आउट करें। ट्रेवलिंग टू द वेरियस रजिस्ट्रीज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में रजिस्ट्रीज हैं। रजिस्ट्री से मुराद हैं सूबों के अंदर एक उनकी ऑफिसेज हैं, एक जहाँ पे कोर्ट्स लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज मौजूद हैं लाहौर, कोयटा, कराची एंड पेशावर में। तो आपके जजेस की ड्यूटी लगती है इन तमाम रजिस्ट्रीज के अंदर भी अक्सर, और हो सकता है कि आपको उनके साथ जाना पड़े वहाँ उन रजिस्ट्रीज के अंदर भी, इफ योर जज साहब वांट्स यू टू टेक यू टू द रजिस्ट्री। सो वहाँ भी एक अच्छी चीज ये होती है कि हर सूबे का माहौल डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ द लीगल जुरिस्प्रूडेंस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जो जज साहब हैं उनका जो ज्यादा फोकस है, उनका जो ज्यादा काम है वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर है। तो क्रिमिनल लॉ की जो मतलब आई कैन नाउ कंपेयर के पंजाब, सिंध, केपी एंड बलोचिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, बिकॉज मैंने वो तमाम चीजें ऑब्जर्व की हैं, रजिस्ट्रीज में जाके वो तमाम काम देखे हैं। तो उसकी वजह से मुझे ये एडवांटेज हो गया कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रैक्टिस इन पंजाब इन क्रिमिनल लॉ और इफ आई प्रैक्टिस इन सिंध और केपी और बलोचिस्तान, तो मुझे ये पता होगा कि उस एरिया में, उस सूबे के अंदर क्रिमिनल लॉ का जो भी सिस्टम है वो मतलब एक होता है ना कि आप बुक में पढ़ते हैं और एक होता है प्रैक्टिकल। यानी हम सब ये सुनते हैं कि जो आप किताबों में पढ़ के आते हैं वो मतलब रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है जब आप कोर्ट्स में खड़े होते हैं। तो वो जो रियलिटी है, वो जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो हर सूबे की डिफरेंट है। आई डोंट नो अबाउट द सिविल, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता बिकॉज मेरा ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो क्रिमिनल लॉ में रहा है। तो मतलब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या वो ग्राउंड रियलिटीज़ है जो उन तमाम सूबों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डिफरेंट है। तो इसी वजह से जब आप रजिस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी और ये एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। इसके अलावा हो सकता है रिव्यू एंड द प्रूफ रीडिंग ऑफ द जजमेंट्स, यानी जो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स लिखे जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपको वो प्रूफ रीड करने पड़े, यानी कि उसमें आप एक दफा से एक लीगल लेंस के साथ उसको दोबारा से पढ़ लें कि उसमें कोई मिस्टेक आपको लग रही है, कोई लॉ पॉइंट जो थोड़ा सा एनहांस किया जा सकता है, तो आप उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं एंड कैरी आउट एनी अदर टास्क जो भी आपके जज साहब आपको दें। सो दिस इज अ वेरी लिटिल एंड ब्रीफ डिटेल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉ क्लर्क। जैसे आपने देखी अभी, ये वो तमाम काम है जो आपसे करवाए जा सकते हैं, जो आपको मतलब यू शुड एक्सपेक्ट दैट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द क्लर्कशिप दीज विल बी द टास्क दैट यू माइट गेट एलोकेटेड टू, एंड आपको ये तमाम काम करने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दैट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्लर्कशिप। सो हमारे पास सबसे पहले दैट द पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दे मस्ट हैव कंप्लीटेड एन अंडरग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, applying for the clerkship program within a period of 4 years of completion। अच्छा, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपका लॉ का लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का एग्जाम हो गया है एंड क्लर्कशिप की एप्लीकेशंस ओपन है, एंड फॉर एग्जांपल क्लर्कशिप की एप्लीकेशन की लास्ट है सितंबर में है एंड आपकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है वो भी सितंबर के अंदर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। यानी कि आपको ये पता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, द फाइनल पासिंग रिजल्ट्स कि अब मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, सो यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। 28 ईयर्स या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए एंड आपने अपनी डिग्री, लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के 4 साल के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। ये आपकी एलिजिबिलिटीज हैं। आप किसी भी जज साहब के रिश्तेदार या दूर के या किसी भी तरीके से उनसे रेलिवेंट नहीं होने चाहिए, जिस तरीके से यहाँ एलिजिबिलिटी में मेंशन है। नाउ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली, हमने एलिजिबिलिटी देख ली। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिम्यूनरेशन, द रिम्यूनरेशन इज 1,21,500 पर मंथ। ये आपको स्टाइपेंड मिलती है, रेजिडेंस आपको नहीं मिलती,
बाकी कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ये आपकी बस एक सॉर्ट ऑफ सैलरी आप इसको समझ लें जो आपको मिलेगी, और रेजिडेंस का इंतज़ाम आपने खुद करना होगा। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी से बाहर से आ रहे हैं तो रेजिडेंस का इंतज़ाम आप खुद करेंगे, लेकिन दिस विल बी द स्टाइपेंड दैट यू विल बी पेड। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे हमने देख लिया कि आपने जब भी एडवर्टाइज़मेंट होगी तो ये तमाम चीज़ें अपलोड हो जाएँगी वेबसाइट पे। क्वेश्चंस, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट और सीवी, ये तमाम सबका जो भी उन्होंने एक बनाया होगा क्राइटेरिया, आपने वो तमाम चीज़ें उन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इकट्ठी करके इन ईमेल पे सेंड करनी होंगी, जो भी उस वक़्त ईमेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएँगे, उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट अपडेट होगी और उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वो इंटरव्यू जज साहिबान खुद से कंडक्ट करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक क्लर्कशिप कमेटी होती है, लॉ क्लर्कशिप कमेटी, उसमें जजेस मेंबर होते हैं। वो जजेस पे तमाम शॉर्ट लिस्टेड जो लॉ क्लर्क्स होते हैं, इंटरव्यू उनका किया जाता है उनकी तरफ से, और उस इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल लिस्ट है वो अपलोड होती है। तो ये तरीका, जिस तरीके से आपकी सिलेक्शन होती है इस प्रोग्राम के अंदर। नाउ जो बाकी चीज़ें हैं वो उसमें वही हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, कि डेडलाइन सबमिशन वो आपको उस वक़्त जो भी दी जाएगी उसको फ़ॉलो करना है, एंड द फर्दर इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने आपको कहा दैट यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर द रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन। ये सारी बातें हमने कर ली अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इसके अलावा अब सब ये सारी बातें हमने कवर कर ली हैं, इसके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि हम अपने टास्क को अच्छी तरीके से अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। अब टास्क को अच्छे तरीके से अचीव करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि जब भी आप अपना सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हों, जिस वक़्त आप उन्हें लिख रहे हों, उन्हें फ्रेम कर रहे हों, तो उस वक़्त ये मत सोचें कि मैं जस्ट एक एप्लीकेशन जमा करनी है मुझे। यू जस्ट हैव टू हैव अ वेरी हाई माइंडसेट उस टाइम पे। जब आप वो हाई माइंडसेट रखेंगे तभी आपकी वो एप्लीकेशन एक अच्छे अंदाज में जो है वो बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके यूनिवर्सिटी में आपने फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट सबमिट करनी है, मतलब रैंडम असाइनमेंट जो हमारी सेमेस्टर का हिस्सा होती है वो आपने सबमिट करनी है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर किसी बंदे ने अपनी थीसिस का साइनॉप्सिस सबमिट करना है, तो सीरियसनेस दोनों चीज़ों में आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ज़्यादा सीरियसनेस होगी उस साइनॉप्सिस को जमा करने में, इंस्टेड उस असाइनमेंट के, उसको आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। सिमिलरली जब आप एक लॉ क्लर्कशिप की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हों, तो उस वक़्त ये नहीं समझें कि मैं अपनी एप्लीकेशन ऐसे ही मुझे सबमिट करनी है, मतलब पता नहीं सिलेक्शन होगी या नहीं। यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंडसेट एट दैट टाइम कि ये जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझसे पूछा है। उसने मुझे कहा है कि आप इस पे अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करें, and now I'm writing this answer to submit that opinion to the honorable judge. जब आप इस इंटेंशन के साथ, इस माइंडसेट के साथ अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइम आपकी एप्लीकेशन, इट वुड बी फूल प्रूफ एप्लीकेशन, एंड इट यू विल बी गिविंग योर 100% इन दैट। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपने फ़ोकस करनी है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए अच्छे तरीके से उसमें दिखानी है अपनी एप्लीकेशन में। ना एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादा पूछते हैं कि आपकी सीवी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मैटर करती हैं या नहीं। तो सीवी जो है आपकी, मतलब चले हम 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी सीवी बड़ी फैंसी किस्म की है, मतलब इट इज़ जस्ट फुल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट। मतलब उसने बहुत इंटर्नशिप्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली अपनी ज़िंदगी में। ओके, इट्स अ वेरी फैंसी एंड फुल एप्लीकेशन, सीवी है उसकी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ स्टूडेंट, उसने सिर्फ 2-3 इंटर्नशिप्स की हैं और बस, उसने ज़्यादा कोई काम नहीं किया हुआ। तो अब एक जनरली जो हमारे बच्चों के अंदर माइंडसेट बनाया गया है, वो यही सोचते रहेंगे कि जिसकी फैंसी सीवी है, उसको कोई जो है थोड़ा-सा एडवांटेज है दूसरे वाले पे, और उसकी सिलेक्शन ज़्यादा आसानी से हो सकती है। सो दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा हम एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल हर दिन यूज़ करते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यानी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी से मुराद है कि आपकी सीवी भरी हुई का क्या मकसद है, अगर वो आपकी स्किल्स में नज़र नहीं आ रहा कि आपने काम क्या-क्या काम किया, वो आपकी स्किल में नज़र नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसकी मैंने अभी पहले एग्जाम्पल ली, उसकी सीवी बड़ी भरी हुई थी, उसने इंटर्नशिप्स, रिसर्च पेपर्स, पता नहीं क्या-क्या किया है।
लेकिन अगर वो अपनी वो तमाम चीज़ों की वजह से जो उसने स्किल्स गेन किए हैं वो अपनी क्लर्कशिप एप्लीकेशन में नहीं दिखा पाता, वो अपने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के अंदर नहीं अपनी वो स्किल दिखा पाता जो उसने यहाँ तमाम अपनी इन एक्टिविटीज से सीखी थी, तो मतलब उसकी उन तमाम एक्टिविटीज का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई क्वालिटी ऐड नहीं हुई उसकी स्किल्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर वो बच्चा जिसकी सीवी बिल्कुल खाली थी, उसने सिर्फ 1-2 इंटर्नशिप्स की थी, लेकिन उसने अपनी उन 1-2 इंटर्नशिप से भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी हासिल की, बहुत अच्छे स्किल्स हासिल किए, और ना सिर्फ हासिल किए, उसने एंड पे वो अपनी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट भी किए। तो ऑब्वियसली दैट स्टूडेंट वुड बी हैविंग एन एडवांटेज ओवर द अदर वन। सो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि ये तमाम जो सीवी वाली बात है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अब ये फैंसी सीवी वाला जो बच्चा है ये सिलेक्ट हो भी गया, शॉर्ट लिस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल फॉर द इंटरव्यू, मतलब इसने बड़ी अच्छी लिख ली, सारा कुछ कर लिया, चला गया, या इसने एआई से हेल्प ली होगी, या जो लोग भी एआई से हेल्प लेते हैं किसी और बंदे से लिखवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को, उनके लिए ये बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो भी गए हैं अपनी इस चीज़ की वजह से, तो जिस वक्त आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू हो रहा है वो जजेस खुद से ले रहे हैं, तो जब वो 2 जजेस आपकी सीवी देखेंगे और आपकी जो आपने ऐसे क्वेश्चन सबमिट किए थे उनके आंसर्स देखेंगे और उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर लेंगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या आपने उस पर खुद से काम नहीं किया होगा। सो अगेन आपकी वो जो सीवी थी, वो जो आपने एफर्ट दिखाई थी किसी और से मदद लेके अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो आप अपने इंटरव्यू में उसको नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएंगे एंड इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर यू। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें और अपनी स्किल को डेवलप करें, जिसका सबसे आसान तरीका प्रैक्टिस के जरिए है कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें और अभी से अपना जो लिखने की प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करें। डेली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लें, ये समझें कि किस किस्म की जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है और उसके ऊपर आप लिखें अच्छे तरीके से। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान की सिमिलर जुरिस्डिक्शन इंडिया की समझी जाती है, बिकॉज हमारे लॉज काफ़ी सेम है, तो आप इंडिया की भी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखें, उनके ऊपर भी लिखना स्टार्ट करें, अपनी जो जुरिस्प्रूडेंशियल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करें। बिकॉज फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है, तो अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो फिर मकसद, मतलब आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी क्लर्कशिप में आने का। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान की जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सो हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी उस चीज़ पे। सो आपने ये तमाम चीज़ें अपने मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द क्लर्कशिप। अगेन अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जाना किस तरफ है, दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर लिटिगेशन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर क्लर्कशिप की तरफ आना है। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द केस टू केस ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनके गोल्स क्या हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मैंने अपनी तरफ से तमाम चीज़ें कवर की हैं। सो इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। Yes, ma'am. Thank you for your time. With this, we shall now move towards the question and answer session. Anyone who has any questions shall now mention them all in the comment section, and we'll move further from there. Okay, so that the first question that we had from this entire session is an individual who's asking that what will be the tenure for it. Okay, tenure जो है, it again depends on the discretion of the law clerkship committee. It is usually 1 year, मतलब 1 year आपका confirm होगा कि that you have to work for 1 year, but the extension it might vary कि वो उस दफ़ा वो दे भी रहे हैं, उनकी policy है या नहीं, but the tenure is generally for 1 year. Okay, and along with that, the second question would be that how is it that we can know about the applications being open? Is it on the website? ओके, एप्लीकेशन जब ओपन होती है तो सोशल मीडिया यानी कि लिंक्डइन पे आ जाती होती है सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे लॉ क्लर्क्स हैं वो भी उस पे एडवर्टाइज करते हैं, अपने लिंक्डइन पे डाल देते हैं कि ये ओपन हो गई, नाउ यू गाइस शुड अप्लाई ओवर देयर। बट इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को चेक करते रहें और लिंक्डइन वगैरह पर एक्टिव रहें। जैसी एप्लीकेशंस खुलती हैं, मतलब वो पता लग जाता है सबको जो भी लिंक्डइन पे एक्टिव है। लेकिन अगर कोई बंदा इतना नहीं भी एक्टिव सोशल मीडिया पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करता रहे मई से अक्टूबर के बीच में। And is there a CGPA requirement?
नो, अगेन नॉट एट ऑल। आपकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आपकी मतलब रिजल्ट आप नहीं अच्छे कर पाए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, सो इट डजंट मैटर एट ऑल कि आप ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ले पाए, या जैसे हमारे पास बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, दूसरे लोकल वाले हैं, डजंट मैटर एट ऑल। आपकी बस स्किल उस ऐसे क्वेश्चन, उस पर्सन स्टेटमेंट में आपकी स्किल्स नजर आनी चाहिए, दैट दिस पर्सन इज केपेबल इनफ ऑफ असिस्टिंग द जजेस। Okay, along with that, another question we have is what skills do judge expect from a law clerk? जैसे हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली लॉ क्लर्क्स की कि उनके काम है क्या चीज, तो उसकी उसकी लाइट में आप ये सोच सकते हैं कि आपकी क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो यही है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, कि जब जब जज साहब आपसे एक ओपिनियन मांगेंगे तो आप ज़ाहिर ऑरली तो उनको नहीं देंगे, आप एक पेपर पे लिखेंगे, एक छोटा सा ब्रीफ बना के देंगे। सो अगेन, अब आप जज साहब को कोई बहुत बड़ा थीसिस पेपर भी लिख के नहीं देंगे, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो पढ़ें, और आपका मेन मकसद उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। तो अगेन आपकी राइटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बहुत बड़ी बात को या बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को जो आपने रिसर्च की उसको एक छोटे से पेज पर लेके आ सकें, और तमाम इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी राइटिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी लीगल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इन टर्म्स ऑफ लीगल पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कोई नया इशू आता है अगर, तो आप एक अच्छे वकील की तरह उसके ऊपर सोच कर, दोनों पार्टीज की तरफ से सोच कर उस पर एक अच्छा सा न्यूट्रल ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। All right, and another question we have is that the next application session for the year of 2026 or 2027, what would be the time frame that it is expected? अगेन इट वुड बी बिटवीन सितंबर, या आप बस अगस्त के टाइम से देखना स्टार्ट कर लें। मैं तो यही कहूंगी कि आप मई से बल्कि देखना स्टार्ट कर लें। मई से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकते हैं। To be on the safe side, yes. And after that, another question is from where do we find the question or past papers for practice, or is it just an application based? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाएं और वहां पे सर्च बार में लिखें क्लर्कशिप। वहां पे जितना भी क्लर्कशिप का मटेरियल है उनका पास्ट ईयर्स में, वो तमाम चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वहां पर पास्ट क्वेश्चंस भी होंगे, हर साल के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बस यू जस्ट हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट, सर्च फॉर क्लर्कशिप ओवर देयर, एंड तमाम मटेरियल आपके पास आ जाएगा। And the last question that we shall be highlighting over here is that does Supreme Court seek freshly graduate students or do they prefer candidates with experience? I think you mentioned this before as well while you were talking about the qualitative and quantitative difference of CVs when applying. So, if you could highlight it even further for an individual. जैसे हमने इसकी एलिजिबिलिटी में भी पढ़ा कि आपकी जिस साल में डिग्री खत्म हुई है उसके विद इन 4 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। सो मेरे ख्याल से वो 4 साल तक तो आप सभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, एंड इट डजेंट मैटर कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं। द थिंग दैट मैटर्स इज कि आप खुद को कितना केपेबल समझ रहे हैं। बेशक आप एक फ्रेश ग्रेजुएट, अभी आपको 1 महीना हुआ है ग्रेजुएट को, कोई प्रैक्टिस नहीं है आपने की, कुछ भी नहीं किया, और आप ये समझते हैं कि मैं एक अच्छे तरीके से असिस्टेंस दे सकता हूँ एक जज को लीगल इश्यूज के ऊपर, तो just go for it. All right, ma'am, that's perfect. And with this, we shall conclude today's session. I would like to sincerely thank everyone for joining us and being such attentive participants. कि The बिलाल, session there's is a question कि yes. यहाँ पे किसी ने पूछा सिफारिश कल्चर के बारे में. It is Oh, very that important. I I want to deliberately ignored that. Yes, I want to address this question. ओके, Okay. साहिबजादा सिफतुल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो भी लोग हैं उनको हर चीज़ में ये प्रॉब्लम होता है, उनका कंसर्न होता है कि सिफारिश कल्चर होगा ये वो। बट आई अश्योर यू कि क्लर्कशिप के अंदर मैंने नहीं देखा, और आई अश्योर यू कि कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल। और मैं कोई और होता तो शायद मैं नहीं सुनती उसकी बात, लेकिन क्योंकि मैंने खुद से ऑब्जर्व कर लिया, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरे कोलीग्स की कोई सिफारिश नहीं थी। सो इट इज अ प्योरली मेरिट बेस्ड पोजीशन, बिकॉज अगर आप सिफारिश पे सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो काम कैसे करेंगे अगर आपको काम नहीं आता होगा। तो इट इज नॉट सिफारिश बेस्ड, इट इज अ प्योरली मेरिट बेस्ड पोजीशन, एंड यू शुड बी completely carefree about this problem. Okay, then with this, should we conclude? Yes. All right. So, as we come to the end of our session, I would like to sincerely thank each and every one of you for joining us and being such attentive participants. And we, as the PNYLA and PNLN,
offer a heartfelt thanks to Ms. Tayyiba Munir for sharing her valuable time, knowledge, and practical insights with us. Your guidance has genuinely helped us through understanding the judicial law clerkship program in a much more clearer and practical way, with on-hand experience of you, as well as we are extremely grateful for your continued support and encouragement. I appreciate the efforts of our entire team, PNYLA and PNLN, for organizing this informative session. We hope this webinar has provided you with clarity, motivation, and direction regarding the judicial clerkship opportunities for Pakistan and in Pakistan. And lastly, those who are interested in leadership opportunities or would like to become a member of PNYLA or PNLN, please write your name in the feedback and certificate form. Our team will contact you with further details. We welcome passionate and dedicated individuals who want to grow, contribute, and make a positive impact for the society. Thank you once again for everyone being a part of this session, especially you, Ms. Tayyiba Munir. And with that, stay connected, stay motivated, and we look forward to seeing you in our upcoming initiatives. Thank you, and Allah Hafiz.